بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بغداد شہر کے ایک مصروف چوراہے پر زندگی کا ایک پیچیدہ منظر تھا۔ یہاں مزدوروں کی بھیڑ میں غریب اور دہاڑی دار افراد اپنے خاندانوں کے لیے روزانہ کی روٹی کمانے کی تگدو میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن مگر امید کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس شہر میں ایک امیر شخص بھی رہا کرتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کو کبھی کبھار کسی مزدور کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ وہ اسے دن کا کام دے سکے۔ ایک دن حسن اس امید سے چوراہے پر آیا کہ اسے کوئی مزدور مل جائے جو اس کے کام کو سر انجام دے سکے۔ مزدوروں کی بھیڑ اس طرح چل رہی تھی جیسے سمندر کی لہریں ساحل پر آ کر ٹکراتی اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ چوراہے پر آتے ہی مزدوروں نے آوازیں لگائیں، جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حسن کو مزدوروں کی حالت پر افسوس ہوا مگر پھر اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو مکمل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ کوئی اس کے پاس آ کر اسے کام دے گا۔ حسن سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جی میں آپ کا کام کر دوں گا مگر میری دہاڑی 50 درہم ہوگی، کیا آپ کو منظور ہے؟ حسن نے اس کی شرائط سنی اور پھر بے یقینی کے ساتھ کہا، 50 درہم یہ تو بہت زیادہ ہے، باقی مزدور تو 5 درہم ہی لیتے ہیں، تم ایسا کیا کرتے ہو کہ تمہیں اتنی زیادہ رقم ملتی ہے؟ اس کی باتوں میں مخلصانہ تجسس تھا مگر اس کی حیرانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے جواب دیا، اگر آپ کو یہ قیمت زیادہ لگے تو باقی مزدور میں سے کسی کو لے جائیے، وہ 5 درہم میں کام کر دیں گے۔ حسن کو بہت تعجب ہوا مگر کچھ سوچ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ نوجوان نے کہا، لیکن میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں مزدوری پر نہیں جاؤں گا۔ حسن نے حیرانی سے کہا، شرائط؟ نوجوان، شرائط تو مالکان لگاتے ہیں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ میری شرائط قبول نہیں کرتے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ حسن نے کہا، اچھا بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے؟ نوجوان نے اپنی شرائط بتائیں، میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو تو میں کام چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا، اس دوران آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی آپ مجھ پر حکم چلا سکیں گے، تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں فیصلہ کروں گا کہ اس کا جواب دوں یا نہ دوں۔ حسن نے یہ سنا اور مسکرا کر کہا، واہ کتنے انوکھے مزدور ہو تم، لیکن چلو مجھے تمہاری شرائط منظور ہے، اب اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ چل کر کام شروع کرو۔ چنانچہ حسن اور نوجوان چلتے ہوئے حسن کے گھر پہنچے۔ نوجوان نے کام شروع کیا تو حسن حیران رہ گیا، جو کام ایک مزدور پورے دن میں کیا کرتا تھا نوجوان نے وہ کام صرف 2 گھنٹوں میں مکمل کر دیا۔ حسن نے نوجوان کو مزید کام دینے کا فیصلہ کیا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ اس دوران نوجوان گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز سنائی دی۔ نوجوان نے فوراً کدال چھوڑ دیا اور قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ حسن کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ نوجوان مٹی کا کام چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ بولا، رکو مٹی کو برابر کر کے جاؤ۔ نوجوان نے غصے سے کہا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی بات نہیں سنوں گا۔ جب آسان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کے تمام کاموں کو بھول جاتا ہوں اور صرف اس کی سنتا ہوں جو سب کو جانتا اور سنتا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری بات تمہارے باپ سے ہو چکی ہے۔ نوجوان نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا اور کام پر دوبارہ لگ گیا۔ اس دوران حسن واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ نوجوان نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ حسن بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد شام کا وقت آیا۔ حسن نے نوجوان کو 50 درہم دیے اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب نہ دینا چاہوں آپ مجھ سے وہ سوال نہ کریں، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر نوجوان وہاں سے چلا گیا اور حسن حیرت سے اسے دیکھتا رہا مگر دل میں تجزیہ کرتا رہا۔ رات کا وقت گزرا اور اگلے دن حسن دوبارہ چوراہے پر پہنچا۔
आज फिर मजदूरों का जत्था अपने रोजाना के काम के लिए शोर मचा रहा था, मगर वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हसन ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो एक ने बताया, हजरत वो सिर्फ पीर और हफ्ते को आता है। ये सुनकर हसन ने चौराहे से कदम उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि एक बूढ़े शख्स की आवाज आई, बेटे जरा रुको, ये एक जहन्नुमी शख्स का किस्सा है। हसन ने मुड़कर देखा कि एक बूढ़ा शख्स बामुश्किल चल कर आ रहा था। वो बोला, क्या आप मुझे कुएं के दरख्त के पास छोड़ देंगे? हसन ने कहा, जी जरूर, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, मेरा बेटा बीमार है और आज उसकी दवा खत्म हो चुकी है, मगर मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का इंतजाम कर रखा है। तुम मुझे वहां ले जाओ, खुदा तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। हसन बूढ़े शख्स की बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसने बूढ़े शख्स को कुआं के दरख्त के करीब छोड़ा और खुद एक तरफ छुप कर देखने लगा कि आखिर इस शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर के बाद तेज कदमों से एक शख्स आया जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से ढांप रखा था। नीले रुमाल वाले शख्स ने बूढ़े को दवा दी और कहा, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। बूढ़े ने कहा, ऐ खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ दे सकूं। नीले रुमाल वाले शख्स ने जवाब दिया, ऐ बुजुर्गवार, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझे कि अल्लाह ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। ये कहकर नीले रुमाल वाला शख्स वहां से चला गया। हसन ये सारा मंजर छुप कर देख रहा था और उस लम्हे में वो ये भी भूल गया कि वो नौजवान मजदूर को तलाश करने आया था। हसन दौड़ता हुआ बूढ़े शख्स के पास आया और पूछा, ये आदमी कौन था जिसने आपकी बेलौस मदद की? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है वो यहाँ आ जाता है और वो नीले रुमाल वाला शख्स हर बार दवा दे जाता है। हसन ने बूढ़े को उसके घर के पास पहुंचाया और फिर वापस घर आ गया। अगले दिन वो दोबारा चौराहे पर आया और देखा कि नौजवान मजदूर वहां नहीं था, मगर वो अब नीले रुमाल वाले शख्स को भी तलाश कर रहा था। हसन बागदाद की गलियों और मोहल्लों में दोनों को तलाश करता रहा। अचानक उसे घर से बच्चों की आवाजें सुनाई दी जो बिलक रहे थे और उनकी माँ उन्हें तसल्ली दे रही थी कि फिक्र न करो, वो अभी आ जाएगा। हसन ये सारा मंजर देख रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ घर में दाखिल हुआ और ये वही नीले रुमाल वाला शख्स था। हसन ने दरवाजे के करीब जाकर देखा कि वो नीले रुमाल वाला शख्स बच्चों के साथ मोहब्बत से बातें कर रहा था और उनकी माँ उसे दुआएं दे रही थी। हसन नीले रुमाल वाले शख्स को रोकता हुआ बोला, ऐ खुदा के बंदे, तुमने मुझे गिरवी बना लिया है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा। नीले रुमाल वाले शख्स ने एक लम्हे के लिए हसन को बुग़्ज़ से देखा और फिर बेदिली से मुस्कुराकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। हसन उसके पीछे दौड़ते हुए उस औरत के घर के पास पहुंचा जहां वो नीले रुमाल वाला शख्स आया था। हसन ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उस शख्स को नहीं जानती, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है जो हर हफ्ते मेरे लिए खाने पीने का सामान भेजता है। आज वो मामूल से थोड़ी देर से आया था और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंची, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुनकर हसन वहां से पलटा और गहरी सोचों में गुम हो गया। वो घर वापस आया और अगले 2 दिन तक वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दिहाड़ीदार नौजवान और नीले रुमाल वाले शख्स को तलाश करता रहा, मगर दोनों का कहीं भी पता न चला। हफ्ते के दिन हसन दोबारा चौराहे पर पहुंचा और वहां नौजवान मजदूर को देखा। वो सीधा नौजवान के पास गया और कहा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते को आते हो। चलो अब मेरे साथ आओ, मैंने भी फैसला कर लिया है कि चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तुम ही से करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शराइत तो याद है ना? हसन बोला, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते के दिन मेरे मुआवजे की शर्त बदल जाती है।
हसन मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 दिनार के बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हसन कहने लगा, भाई तुम्हारी शरायत मुझे हर बार हैरान कर देती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? दिहाड़ीदार नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूं वो नहीं दूंगा। चुनाचे हसन ने दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। आने वाले महीनों तक यही सिलसिला जारी रहा। हर बार पीर और हफ्ते को हसन चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार अपनी शरायत याद दिलाता। हसन हर बार उनकी पैरवी करता और उससे काम करवाता। इस दौरान हसन बगदाद की गलियों में भी घूमता रहा और अक्सर मौके पर नीले रुमाल वाले शख्स को मदद करते देखता। वो कई बार उससे पूछने की कोशिश करता कि वो कौन है, कहां से आता है, मगर हर बार वो शख्स हसन को कुछ लम्हे देखकर वहां से चला जाता। एक दिन हसन चौराहे पर दिहाड़ीदार नौजवान को लेने आया तो वो वहां मौजूद नहीं था। दूसरे मजदूरों से पूछने पर उन्होंने बताया, हजरत, आज वो नहीं आया। हसन ने पूछा, क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, उसकी तबीयत नासाज है, मगर उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि फुला गली के नुक्कड़ पर उसका मकान है, वो वहां आपका इंतजार कर रहा है। हसन दौड़ता हुआ उसके मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, हुजूर, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हसन जब अंदर गया तो नौजवान की हालत बहुत ही खराब थी, वो कांप रहा था। नौजवान ने कहा, हुजूर, बहुत बरहक है, कोई नहीं जानता कि कब आएगी। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो जाए तो बराए करम मेरा कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आपने मुझसे इसरार किया था। ये कहते हुए उसने एक छोटा सा संदूक खोला और उसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह मजबूती के साथ बंद था। नौजवान ने वो हंडिया हसन को देते हुए कहा, ये हंडिया बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त के नीचे ले जाकर वहां खड़े हो जाओ। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आएंगे, वो आपसे इस हंडिया का तकाजा करेंगे। आप ये हंडिया उनके हवाले कर देना। उसके बाद एक अंगूठी हसन को दी और कहा, ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, ये आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो आपको इससे बात करने की इजाजत देंगे क्योंकि वो आखिरकार बादशाह है। तीसरी दरखास्त यह है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना ताकि मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाए। नौजवान ने मजीद कहा, मैं आपके उन तमाम कामों को बखूबी अंजाम देने का वादा करता हूँ, मगर आपने मेरे बारे में जो सवालात किए हैं उनके जवाबात आपको सिर्फ उन कामों के बाद ही मिलेंगे। हसन बोला, मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ दूं? मगर नौजवान के इसरार पर हसन वहां से वापस आ गया। हसन रात भर बेचैन रहा, रात को करवटें बदलते हुए गुजारती अल्लाह का जिक्र करता रहा। जब सूरज की पहली किरण चमकने लगी, हसन फौरन नौजवान के घर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो नौजवान की रूह परवास कर चुकी थी। हसन की आंखों में आंसू थे। उसने नौजवान की वसीयत के मुताबिक उसका जनाजा बाहर गली में रख दिया और दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ गया। वहां वो दरख्त के नीचे खड़ा हो गया जैसे नौजवान ने कहा था। कुछ देर के बाद लोग जमा होना शुरू हो गए और वो सब गरीब और लागर दिखाई दे रहे थे। हसन हैरत से उन्हें देख रहा था जब एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए और हसन से हंडिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हसन ने हंडिया उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने उस हंडिया को खोला और उसमें से एक नीला रुमाल निकाला जिसमें से 2 दीनार खनकते हुए जमीन पर गिर गए। दर हकीकत ये वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों की मदद करने वाला शख्स हमेशा अपने चेहरे पर ढांप कर रखा करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहा पुकार और आहो पुकार से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू मौजूद न हो। हसन ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसू न रोक सका। उस पर यह राज खुल चुका था कि वो नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हसन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सही समझा, ये वही अल्लाह वाला नौजवान है
जो हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था, पीर को 50 दिनार देकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिनार लेता था उनसे अपना गुजारा करता था। और जब भी वो फारिग हुआ करता वो सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिनार ये वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया था। जिन लोगों की वो मदद करता था उन सबको उसने बता रखा था कि अगर कभी वो तुम्हारी मदद के लिए ना आ सके तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब खड़े हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हंडिया और रुमाल मिल जाए तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। हसन ने बुजुर्ग से पूछा, मगर वो नौजवान आखिर था कौन? क्या उसका कोई वाली वारिस भी था? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बेवाओं के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे। उसके बाद सारा मजमा रोते हुए उस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में उस नौजवान का जनाजा इंतजार कर रहा था। सबने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हसन जब नौजवान की आखिरी फराइज से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। चुनाचे वो तेज कदमों के साथ दौड़ता हुआ महल की जानिब चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो उसने देखा कि खलीफा अपने वजीर के साथ बाग में टहल रहा था। हसन ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हसन बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हसन को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ जरा कौन सी अंगूठी है। हसन ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी पकड़कर अपने सीने से लगा ली और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे उस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हसन बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज बगदाद भर के जम्मे गफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा धाड़े मार मार कर रोने लगा और हसन से कहा, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पांव बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र तक पहुंचा। वहां जाकर उसकी कब्र से लिपटकर रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मगर तुम नहीं मिले, और अब जब तुम मिले हो तो किस हालत में मिले हो? तुम्हारी कुर्बानी का कोई बदला नहीं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें समझा नहीं। हसन ने पूछा, हुजूर आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन ही से एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करता था। उसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे ना भागूं। कई बार उसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब ना दिया जा सके। लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। अफसोस है मुझ पर कि मैंने इसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी इसकी सजा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद खलीफा कई दिनों तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के नीचे वो बुजुर्ग खड़े मिले। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा, लाइए वो नीला रुमाल मुझे दे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़कर गया था मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटकर एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। जो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।